Hello students, very good morning to all of you. Myself Devesh Singh from LPM Public School Gola Bazar. Today we are going to start the new chapter from your literature book. The chapter is History Around Us. Dear students, in this chapter there is a good description of our history, our historical places, and it is also said us that history is very important in our life. It has a great value. It reminds us our past, and it also provides us a good message to learn something from our past days, from our past histories, that what we have to do and what we have not to do. Okay, let's see students. Starts this chapter. History around us. We think history is only for historian and teachers. The writer says that it is understand by the students that history is made for historians and teacher. जो हिस्ट्री है सिर्फ हिस्टोरियंस के लिए और टीचर्स के लिए ही बना है, ऐसा स्टूडेंट्स के द्वारा समझा जाता है, लेकिन ये सही नहीं है. बट एक्चुअली इट कंसर्न्स ऑल ऑफ अस. वास्तव में जो हिस्ट्री है ये हम सबसे कंसर्न है, हम सबसे जुड़ा हुआ है. वाई आर हाउ डज अ पर्सन गेट इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री? क्यों एक व्यक्ति हिस्ट्री में क्यों इंटरेस्टेड है, क्यों उसका इंटरेस्ट हिस्ट्री में बहुत अधिक उसका इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है, वो क्यों उसके प्रति उसका अटैचमेंट बढ़ रहा है. इट इज आल्सो सीन हियर. इज इट इम्पॉर्टेंट टू नो हिस्ट्री एंड अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंड इन द पास्ट? द राइटर आल्सो सेज दैट इज इट इम्पॉर्टेंट टू लर्न हिस्ट्री, टू रीड हिस्ट्री? क्या हिस्ट्री को पढ़ना, उसको समझना क्या अनिवार्य है, क्या मस्ट है? और what happened in the past, is it must to know that what happened in the past? हमारे पास्ट में, हमारे अतीत में, हमारे इतिहास में क्या हुआ है, क्या उन सारी चीज़ों को जानना क्या मस्ट है, या फिर सिर्फ ये दिखावे के लिए है? Read what different people have to say about why history is important. Finally, the writer says that we have to read this chapter to find out some critics' opinion, some people's opinion that why history is important in our life, and why it's must to know our past, to know our past events, why it is must. Let's see. At first, students, you can see in your book, at first Yasmin Salim is a history teacher from Jeddah. She also appreciated here about history, and she also expresses her views about history. Now let's see what she wants to message us. My student often ask me why learn history. यहाँ पे कह रहे हैं यस्मिन सलीम कि मेरे स्टूडेंट्स मुझसे अक्सर पूछते रहते हैं कि वाई लर्न हिस्ट्री, क्यों हम हिस्ट्री को लर्न करें, हिस्ट्री को क्यों हम पढ़ें. इज इट इम्पॉर्टेंट? क्या है इम्पॉर्टेंट है हिस्ट्री को, क्या लर्न करना, इसको पढ़ना क्या इम्पॉर्टेंट है? इट इज, यह इम्पॉर्टेंट है. टू नो आवर सेल्व्स वी शुड नो वेयर वी कम फ्रॉम. मिसेस यास्मीन सलीम सेज दैट वी मस्ट नो आवर सेल्फ, वी मस्ट नो आवर सेल्फ, वी मस्ट नो आवर आइडियाज, वी मस्ट नो all about us, and also we have to know that from which place we have come here, where we come from, we have to know it, and what makes us human is a result of our past experience. She also says that if we study our history, if we see our past, we find out that there are something that make us human, because human is a result of our past experience.
वैसे नहीं कोई मानव बन पाता, एक सही मनुष्य वैसे नहीं बन पाता है। एक सही मनुष्य बनने के लिए बहुत सारी एक्सपीरियंस को अचीव करना होता है। जब बहुत सारी एक्सपीरियंस को इंसान अचीव कर लेता है तो उसके बाद से उसको जो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हो जाता है तो कोई भी कार्य वो करता है तो वो कार्य क्या होता है, वो कार्य कल्चर्ड होता है, वो कार्य जो है उसमें फुल ऑफ रेपुटेशन होता है, उस कार्य में जो है रिस्पेक्टफुल वहाँ पे उसको वैल्यूज उसको मिलता है। इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि ह्यूमन इज अ रिजल्ट ऑफ आवर पास्ट एक्सपीरियंस। पास्ट एक्सपीरियंस के बाद ही कोई व्यक्ति ह्यूमन बन पाता है, उसके अंदर ह्यूमन की सारी वैल्यूज जो हैं उसके अंदर आ पाती है। Nations and people acquire their identity because of their history. Here, the writer says that any nation or any people, without history, there is no recognition. There is no recognition for that particular country, for that particular nation, and also there is no identity for a citizen without history. अगर हिस्ट्री है तो हिस्ट्री ही किसी नेशन को, किसी राष्ट्र को और उसके लोगों को उसको उसकी पहचान दिलाती है। Studying history enables us to understand different cultures, and if you study history, it enables you, it provides you what? It provides you to understand different culture. Different culture क्या होता है? Various type of culture, आपको बहुत भिन्न प्रकार के संस्कृतियों को, परंपराओं को समझने का ये सारा अनुभव हिस्ट्री कराती है। एंड हाउ द वर्ल्ड केम टू बी, संसार का कैसे निर्माण हुआ, संसार का उद्गम कैसे हुआ, इन चीज़ों की जानकारी हिस्ट्री को पढ़ने के बाद हमें प्राप्त होता है। आफ्टर दैट, बाय लर्निंग अबाउट द कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ इवेंट्स, we learn to deal with conflicts among nations and avoid making the same mistakes of the past. By learning about the causes, उन कारणों को पढ़ करके, उन दोषों को पढ़कर, उन समस्याओं को पढ़कर, और जो हिस्ट्री जो हमारे पास्ट में जो भी इवेंट्स हैपन हुए हैं उस पास्ट इवेंट्स के इफेक्ट को पढ़ करके we learn to deal with conflicts. कॉन्फ्लिक्ट मीन्स होता है डिफरेंसेस, डिसएग्रीमेंट या डिफरेंसेस को हम डिफरेंसेस और डिसएग्रीमेंट को हम बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट। तो कह रहे हैं कि वी लर्न टू डील विद कॉन्फ्लिक्ट, हमें उस डिफरेंसेस से, उस डिसएग्रीमेंट से हमें डील करने के लिए सीखना है अमंग नेशंस, उन राष्ट्र के बीच में जा कर के, एंड अवॉइड मेकिंग द सेम मिस्टेक ऑफ द पास्ट। और फिर जो गलतियाँ पास्ट में हमारे राष्ट्र के द्वारा, हमारे लोगों के द्वारा हुई थी, फिर उसी गलतियों को फिर से हमें दोहराने से अवॉइड करना चाहिए, और फिर से कहीं रिपीट ना हो जाए, इस चीज़ से हमें बचना चाहिए। ये मस्ट नहीं है कि जो हमारा पास्ट में जो इंडिया ने किया वही चीज़ हम करें। ये मस्ट नहीं है कि जो पास्ट में हमारे पूर्वज ने जो किया वो सेम चीज़ हम करें। इट इज़ नॉट मस्ट, वी हैव टू डू समथिंग न्यू, आवर कंट्री हैज़ टू डू समथिंग न्यू दैट कुड डेवलप आवर आइडियाज़, दैट कुड डेवलप आवर सोशल एंड इकोनॉमिकल स्टेटस। सो आवर इंक्रीज आवर सोशल एंड इकोनॉमिकल स्टेटस, वी हैव टू डू समथिंग न्यू। As they say, those who fail to learn from history are doomed to repeat it. जैसे कि ऐसा कहा भी गया है, ऐसा कहा भी जाता है कि वे लोग जो हिस्ट्री को लर्न करने में फेल मार जाते हैं, अर्थात जिनको हिस्ट्री लर्न नहीं हो पाता है, हिस्ट्री में जिनका इंटरेस्ट नहीं प्रोड्यूस हो पाता है, आर डूम्ड टू रिपीट इट, वो निश्चित तौर पर वो हिस्ट्री को रिपीट करते हैं। हिस्ट्री वही रिपीट करते हैं जो हिस्ट्री को अच्छी तरह से उसके ऊपर फोकस नहीं कर पाते हैं, कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, उसको ट्रेजर नहीं कर पाते हैं, वही हिस्ट्री को रिपीट करते हैं। अर्थात अगर किसी का अगर बेटा अगर चोर बना हुआ है और किसी का बाप अगर चोर बना है, अगर उसका बेटा भी अगर उस हिस्ट्री को अगर अच्छे से कंसंट्रेट नहीं करेगा कि उसके फादर ने चोरी की थी, उसकी कितनी इंसल्ट होती थी, समाज में रेपुटेशन नहीं था, अगर उस चीज़ को ऑब्जर्व नहीं कर रहा है, उस चीज़ को हार्डली नहीं ले रहा है, वो भी नहीं पढ़ना चाह रहा है, तो इसका मतलब वो भी उस इतिहास को रिपीट करेगा। ऐसा बुक में भी लिखा हुआ है और ये सर्टेनिटी है कि वही इतिहास दोहराता है जो इतिहास को सही तरीके से समझ नहीं पाता, उस पर फोकस नहीं करता, उसको अटेंटिवली कंसंट्रेट नहीं करता। नाउ द सेकेंड ओपिनियन फॉर K.N. Panikkar. K.N. Panikkar is a professor and historian. He is also president of Indian History Congress. You can see in your book, students, to
the opinion of Mr. K.N. Panikkar. Now you see what he says. The ideas, tradition and events of the past are connected with and merged into the present in various ways. क्या वो कहना चाह रहे हैं, ध्यान से देखिए। मिस्टर के.एन. पनिकर जो कि एक प्रोफेसर हैं, वो कहना चाह रहे हैं कि जो आइडियाज़, जो इंसान की विचारें हैं, जो ट्रेडिशंस जो हमारे समाज में फैली हुई हैं, जो पुरानी रीतियों को, कस्टम्स को, ट्रेडिशन को हम लेके चल रहे हैं, एंड इवेंट्स, और जो भी घटनाएं, जो घटना चक्र हुई हैं ऑफ द पास्ट की, अतीत की, आर कनेक्टेड विद मर्ज्ड इनटू, ये कनेक्टेड हैं, जुड़ी हुई हैं, और मर्ज्ड इनटू मतलब मिक्स हैं। ये प्रेजेंट पास्ट की घटनाएं हमारे प्रेजेंट की इन बिहेवियर से, प्रेजेंट के सोशल इकोनॉमिकल स्टेटस से मिक्स हैं, मर्ज हैं इन वेरियस वेज, बहुत सारे तरीकों से हमसे मर्ज हैं, तभी तो उस चीज़ को आज भी फॉलो किया जा रहा है, तभी तो लोग उस स्टोरी को, उस हिस्ट्री को फिर से रिपीट करने का, उसको दोहराने का प्रयास कर रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग दिस इंटरेक्शन, कह रहे हैं कि हमें इस इंटरेक्शन को, इस मिक्सिंग को समझना होगा। इस इंटरेक्शन को इज़ द स्टडी एंड राइटिंग ऑफ हिस्ट्री, और इसको हम तभी समझ सकते हैं जब when we very attentively read the history and we also try to write the history. We have to do this thing, means we have to write, we have to read all the things if we want to clear the concept. Now let's see next page number 125 of this chapter, second page of this chapter. You see here is a student, the student is Aditya Ravi. The student name is Aditya Ravi. He is a student from Gurugram. What he wants to share, how he wants to share his feelings, his ideas with us. Let's see students. He says that history help us to make wise decision. कितना अच्छा लाइन स्टूडेंट ने कह रहा है कि हिस्ट्री हमारी हेल्प करती है टू मेक वाइज डिसीजन लेने में मदद करती है। टू नॉट रिपीट दोज एक्शन, और उन एक्शन को रिपीट करने में मदद करती है दैट हैव कॉज्ड निगेटिव रिएक्शन, जिन चीज़ों की वजह से हमारे माइंड में निगेटिव रिएक्शन आ रही हो, नेगेटिविटी हमारे अंदर पैदा हो रही हो, ऐसे चीज़ से हमें बचने में भी मदद हमें करता है कुछ, तो हिस्ट्री करती है, दूसरा कोई चीज़ नहीं करती है। इट टीचेज अस अबाउट आवर सिविलाइजेशन में सभ्यता, और हमारी सभ्यता के बारे में भी हमें ज्ञान देता है। क्या? हिस्ट्री हमें हमारे सभ्यता के बारे में, हमारी संस्कृति के बारे में, हमारी परंपरा के बारे में, कस्टम, ट्रेडिशन, सिविलाइजेशन, कल्चर, एवरीथिंग के बारे में हिस्ट्री हमें जानकारियाँ प्रदान करती है। एंड हाउ आवर एंसेस्टर हैंडल टास्क, और ये भी हिस्ट्री हमें बताती है, जब हिस्ट्री का हम स्टडी करते हैं, कि हाउ आवर एंसेस्टर हैंडल टास्क, जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, वो कैसे इतने सारे टास्क को, इतने सारे काम को बड़े ही ईजिली कैसे हैंडल कर लेते थे, बड़े ही ईजिली कैसे टास्क को वो कंप्लीट कर लेते थे with limited or no technology, without any technology. At that time there were no technology. After that our ancestors complete their task, and without any failing, without any failure, without any mistake, they complete their task. But in these days we have a lot of technologies. After that we are not capable to do our task at particular time, at certain time. So it shows our failure. It shows that we are not successful in our life. It tells us about our heritage. ये हमारे हेरिटेज क्या होता है? हमारी विरासत। ये हमारे हेरिटेज के बारे में बताता है, हमारी विरासत के बारे में बताता है। कस्टम हमारे रीति रिवाज के बारे में बताता है। प्रैक्टिस हमारे प्रैक्टिस के बारे में बताता है कि कैसी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, किस तरह का हमारा प्रैक्टिस है। इट शोज अस, ये हमें दिखाता है हु वी आर, हम कौन हैं, हमारी क्या पहचान है, हमारा बेस क्या है, एंड हु वी आर एंड व्हाट वी शुड स्ट्राइव टू बी। हम हैं कौन, हम थे कौन, और कैसे हमें आगे रहना है, कैसे हमें संघर्ष करना है, कैसे हमें अचीवमेंट्स को प्राप्त करना है। हाउ वी हैव टू अचीव आवर सक्सेस, हाउ वी हैव टू डू समथिंग टू गेट सक्सेस इन आवर लाइफ, हाउ वी हैव टू क्रॉस ऑल द डिफिकल्टीज इन आवर लाइफ, एवरीथिंग इट सो वी फाइंड इन द हिस्ट्री, इन द स्टडिंग ऑफ हिस्ट्री।
It is said by the students Aditya Ravi, a students from Gurugram. A very important important lines given by this student. Okay students, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा. यू विल रिवाइज इट एंड नाउ ऑन द नेक्स्ट डे यू विल रीड द न्यू फ्रॉम द न्यू टॉपिक्स that is from Beena, a student of Hyderabad. What she wants to tell us about history, we have to read it. Okay students, till then, goodbye, have a nice day.